also on our very own platform Learn NEET IITJ with Babita. Today I'm here with another part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start with the work. But before that, I would like to say you again the way I say you each and every time. Do like, share and subscribe. And the way I said in part 1, again I'm saying the chapter is more than important from NEET point of view, and you need to take care of this chapter. So friends, ये है front view of the cartilages of larynx. इसमें सारी cartilages हमें visible नहीं होती हैं. Like we don't have visible corniculate cartilage, cuneiform cartilage, arytenoid cartilage. मतलब जो डबल cartilages होती हैं वो हमें visible नहीं होती यहाँ पर. तो हम इधर देख रहे हैं. This is the epiglottis. Here this is the hyoid bone. Then we have the thyroid cartilage, and then this one is the trachea. After that we have this one in blue. This is the cricoid cartilage. Then we have thyroid gland, the one in orange. Remember, this is thyroid cartilage, this is thyroid gland. Thyroid cartilage is present above trachea, and thyroid gland is present somewhere in front of the trachea, somewhere in the middle. Then we have the rings of cartilages, and the ones in green. These she-shaped rings are, means not complete. They are incomplete from the back side. And on the top of all, they are a number of rings starting from the trachea till our bronchioles. Now we have the back view of the cartilages of larynx. So first of all, we have epiglottis. Here, as you can see, there were many cartilages which were not present in the front view, and those are visible here. So this is epiglottis, that flap-like structure. Then this is the hyoid bone. This is a single bone. Never mind, it is hidden behind the epiglottis, but it's a single bone. And then we have, on the both sides of epiglottis, we have the corniculate cartilages. Then on the both sides of the thyroid cartilage, we have the cuneiform cartilages, which also exist in pairs, just as corniculate cartilages. Then we have the thyroid cartilage. After thyroid cartilage, we have the cricoid cartilage. Then we have parathyroid cartilages, which also exist in pairs, as you can see it here. Then we have the trachea, which consists of she-shaped rings which are incomplete. So this is all about the cartilages of larynx, back view. So guys, now it's time to learn more about larynx. So larynx has a mucous membrane. Which forms two types of folds. The mucous membrane of larynx forms two types of folds. Two types of folds. So the two types of folds are superior pair and inferior pair. Means they exist in pairs. First of all, we have the superior pair. Superior pair. The superior pair has vestibular folds. We have here the vestibular folds. And an important point about the vestibular folds is that these are also known as false vocal cords. So what are false vocal cords? These are the vestibular folds. Then we have an inferior pair, which is present below the superior pair, as the name suggests. Inferior. So these are vocal folds. Then like vestibular folds are known as false vocal cords.
Same way, just guess what the vocal folds are called. These are called the true vocal cords. So here we have the true vocal cords among us. So the superior pair has vestibular folds, which are also known as false vocal cords. The inferior pair has vocal folds, which are also known as true vocal cords. Then the space between these two vocal folds, which two? The superior pair and the inferior pair, we have a space which is known as rima vestibuli. Point to be remembered. We are expecting 2 questions out of this chapter, and this can be one of those, or it is also known as rima glottidis. So we have the space between two vocal folds, which is either known as rima vestibuli, either known as rima glottidis. So here we have the diagram of the vocal folds, of the folds, superior vestibular folds and vocal folds, and the space between them. So here this is the one in yellow are the vestibular folds. So these are the vestibular folds. The ones in pink are the vocal folds, or we can say true vocal cords. The arrows in black depict the movement of vocal cords. Then the space between, the space which is the blank space, is the rima vestibuli or rima glottidis. So in males, the thyroid cartilage, in males, the thyroid cartilage is slightly bulged outside. मतलब जो मेल्स में जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो थोड़ी बाहर निकली हुई होती है. कहाँ निकली हुई होती है? थोड़ी बाहर निकली हुई होती है. सो इट इज़ स्लाइटली बल्ज्ड आउटसाइड, विच इज़ नोन एज प्रोट्यूबरेंस. या फिर हम कह सकते हैं कि जो थायराइड कार्टिलेज है वो प्रोट्यूबरेंस शो करती है, एंड वी कॉल दिस बल्जिंग एज एडम्स एप्पल. और जो ये बल्जिंग होती है इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो एडम्स एप्पल होता है, ये जो बल्जिंग होती है, ये फीमेल्स में एब्सेंट होती है. जो माइनस के आगे एंटी का साइन होता है, दैट डिपिक्ट्स एब्सेंट. सो अब हम चलते हैं ट्रैकिया और लंग्स की सैर पर. मतलब now we are going to learn the anatomy of trachea and the lungs. तो जो ट्रैकिया है उसे हम विंड पाइप कंसिडर करते हैं, मतलब जिससे विंड होकर जाती है. फूड पाइप कौन सा होता है? इसोफेगस. सो ट्रैकिया इज कंसिडर्ड एज विंड पाइप, इससे विंड होकर जाती है. लैरिंक्स के बाद सीधा विंड इसमें जाती है. अब इसकी जो लेंथ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि पहली बार अकेले विंड इसमें आती है. लेंथ कितनी होगी इसकी? 12 सेंटीमीटर. डायमीटर होगा इसका लगभग 2.5 सेंटीमीटर. अप्रॉक्सीमेट होता है क्योंकि मैं इसे मेज़र करके नहीं आई, पर ये NCERT लिखती है. तो इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर. इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर. एंटीरियर क्या होता है? आगे. पोस्टीरियर क्या होता है? पीछे. सो इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू ईसोफेगस. ईसोफेगस के आगे इसकी लोकेशन होती है.
फ्रॉम लैरिंग्स, इसोफेगस के आगे होती है। अब ऊपर से नीचे की लोकेशन देख लेते हैं। फ्रॉम लैरिंग्स, लैरिंग्स से ही स्टार्ट होता है। लैरिंग्स होता है अपना वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, तभी हम बोलते हैं। फ्रॉम लैरिंग्स टू सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर क्या होता है? ऊपर वाला, भगवान नहीं, जो उसके ऊपर लिखा होता है वो वाला, ऊपर वाला। फ्रॉम लैरिंग्स टू सुपीरियर बॉर्डर ऑफ T5, T5 क्या होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, अपनी कमर में हाथ लगा ऊपर के पार्ट में, आपको एक ऐसी बल्जिंग सी दिखेगी, ऐसी ऐसी ऐसी, मतलब दिखेगी नहीं, फील होगी ऐसे। ये आपको लगेगा यहाँ पे जैसे एक छोटी सी गांठ है, इधर एक और है, इधर एक और है, ऐसे करके। तो ये हमारी होती है नेक पार्ट से स्टार्ट, आगे वाले नेक पार्ट से नहीं, पीछे वाले नेक पार्ट से स्टार्ट होती है ये। तो ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा बोला जाता है, जो ये एक बल्जिंग होती है ना, इसे थोरेसिक वर्टिब्रा बोला जाता है। तो मतलब आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये कहाँ स्टार्ट होता है ट्रैकिया। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, और 5वें थोरेसिक वर्टिब्रा के एकदम आगे आपका ट्रैकिया वहाँ पे समाप्त हो जाता है। लैरिंग्स से चालू होते हैं। अब बॉयज़ तो इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि एडम्स एप्पल की बाहर बल्जिंग होती है, प्रोट्यूबरेंस होती है, उसमें हाथ लगाएंगे, आगे से पीछे से उसको हाथ लगाएंगे, पता लग जाएगा एकदम यहाँ से यहाँ तक है हमारा ट्रैकिया, इस सेंस में। अब यहाँ से ये डिवाइड होता है, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है। सो इट डिवाइड्स, दैन हियर इट डिवाइड्स इनटू, ये डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब अब बेचारे का बंटवारा हो गया है। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये इसके बाद एक और बात जान लो, जो ट्रैकिया होता है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे बोला जाता है एडवेंटिशिया। ट्रैकिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया। So this is the outermost layer of the trachea. अब ट्रैकिया की जो मेन बात थी वो ये है कि इसमें 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ट्रैकिया में रिंग्स होती हैं, पर उनका जिक्र लास्ट में क्यों किया? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। ये PYQ यहाँ से है, PYQ। तो इट कंटेन्स 16 to 20 incomplete rings of hyaline cartilage which prevent trachea from collapsing। मतलब वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। दिस आर हाईलाइन कार्टिलेजेस रिंग्स। इनका काम होता है कि वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, क्योंकि जब एयर अंदर आती है तो भी और बाहर जाती है तो भी। एक टाइम तो ऐसा आता होगा ना जब ट्रैकिया के उस पार्ट में बिल्कुल भी एयर नहीं बचती, तो उस टाइम पे ट्रैकिया जब खाली हो जाता है तो कहीं उसकी दोनों वॉल्स आकर चिपक ना जाएं, इसलिए ये जो रिंग्स होती हैं सी शेप्ड होती हैं। ये जो सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं ये उसे कोलैप्स होने से बचाती हैं।
अब यहाँ हमने देखा था कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो अब हम ब्रोंकाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रोंकाई जो होती हैं वो दो होती हैं, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, देखा था हमने। टू ब्रोंकाई, वन इज लेफ्ट वन इज राइट। तो ये स्टार्ट होती हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ T5, स्टार्ट फ्रॉम सुपीरियर बॉर्डर ऑफ T5, पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रा की ऊपर वाली बॉर्डर से स्टार्ट होती है। सो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ T5, ये मैं दोबारा नहीं लिखने वाली, देखो ये इधर लिख रखा है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये रहा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ T5। आफ्टर दैट द ब्रोंकाई एंटरिंग इन लेफ्ट लंग, जो लेफ्ट लंग में एंटर करती है उसे बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई, जो राइट लंग में एंटर करती है उसे बोलते हैं राइट ब्रोंकाई। तो ये है लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई की कहानी। बल्कि ब्रोंकाई के बीच में प्राइमरी और हटा देना चाहिए, क्योंकि ब्रोंकाई सेकेंडरी भी आती हैं। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं, एक बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, वो थोड़ी सी वाइडर होती है देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया होता है वो ब्रोंकाइज में डिवाइड करता है। सो एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट वेयर ट्रैकिया divides into primary bronchi। वैसे ये ब्रोंकाई होता है, ये प्लूरल होता है, ये हम इधर फ्लो में लिख देते हैं। बाकी इधर राइट प्राइमरी ब्रोंकस आना चाहिए था, इधर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस आना चाहिए था, बट डजंट मैटर, हम कर लेंगे मैनेज। हम तो जानते हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो इधर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पढ़ो। तो ये पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, टू प्राइमरी ब्रोंकाई लिख देती हूँ, टू प्राइमरी ब्रोंकाई। उस पॉइंट को बोला जाता है कैरिना, इस पॉइंट को बोला जाता है कैरिना, कटरीना नहीं, कैरिना। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कैरिना। अब इस कैरिना को कटरीना से याद रखना, Katrina is so sensitive. So Karina is the most sensitive area of trachea। एक छोटा सा पॉइंट होने के बावजूद भी बहुत सेंसिटिव है ये कैरिना। तो ये जो कैरिना है ये ट्रैकिया का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकस राइट में। सो नाउ वी हैव द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम larynx till the end. So first of all we have a larynx or voice box, then it ends in trachea, which is C-shaped rings called as rings of cartilage. Here this point is carina, where the trachea divides into primary bronchus left and primary bronchus right. So the primary bronchus left goes in left lung and the primary bronchus right goes in the right lung. Now we have the right lung divided into three parts by two fissures. First of all we have a horizontal fissure, the one you can see this way. Secondly we have an oblique fissure.
The horizontal fissure and the oblique fissure together divide the lung into three parts. First of all, we have the superior lobe, the present at the top. Then we have the middle lobe here. Then we have the inferior lobe here. And after that, the time for the left lung. The left lung is divided into two lobes by a single oblique fissure into superior lobe and inferior lobe. Here we have a cardiac notch, as the word cardiac refers to. It's somehow related to our heart. And the relation to our heart is it's a place where the heart is kept, or it's the place for the heart in our body. Then the next one we have is the mediastinum. It is the space between the two lungs. Then we have the lung has two boundaries. First is parietal pleura, the outer one. The inner one is the visceral pleura. Between the parietal pleura and the visceral pleura, we have the pleural cavity, which contains pleural fluid. So this was all about the diagram of lungs. So now we are done with the diagram. Let's proceed to some theory. So as we all know, the two lungs are divided. और सेपरेटेड, मतलब तो दोनों का एक ही है. दोनों लंग्स एक दूसरे से अलग होती हैं विद द स्पेस वेयर द हार्ट इज लोकेटेड. मतलब एक स्पेस होता है जहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, वहाँ दोनों लंग्स एक दूसरे से अलग होती है. दैट्स इट. और वो जो स्पेस होती है उसका नाम होता है मीडियास्टेनम. उसके भीतर एक नोच होती है. मीडियास्टेनम के अंदर एक नोच होती है जहाँ पे असल में वो पार्ट जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होते हैं वो होती है कार्डियक नोच, जहाँ पे हार्ट असल में प्रेजेंट होता है. Then the two pleural membranes, the parietal pleura and the visceral pleura. So we have two pleural membranes. जैसा कि हमने डायग्राम में देखा ही था. पहली है parietal pleura. The second one is the visceral pleura. Then we have what is between these two membranes? We have a pleural fluid. So between these two membranes, between the two pleural membranes, we have the pleural fluid. Pleural fluid. अब ये प्लूरल फ्लूइड बेकार में जगह घेरने के लिए तो होता नहीं है, तो इसका कोई फंक्शन भी होता होगा, क्योंकि हमारी तरह आलसी कुछ नहीं है नेचर में. हमारी बॉडी में हर एक चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, और जिसका कोई फंक्शन नहीं है उसे हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है. ऐसे हमारे साथ ऐसा होता नहीं है. हम यदि कुछ नहीं भी करते तो भी हम आराम से अपना आसन जमा के बैठे रहते हैं, पर इधर ऐसा नहीं होता है. प्लूरल फ्लूइड होता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं. इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स. तो ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा ये दो काम में और हेल्प करते हैं. इट प्रिवेंट्स, मतलब ये बचाता है, रक्षक है. इट प्रिवेंट्स ड्राइंग एंड फ्रिक्शन. दोनों ही बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. ड्राइंग एंड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो घिसा घिसा के कमज़ोर बना देगा, और ड्राइंग अगर ड्राई होगा तो फिर एयर कैसे निकलेगी, है ना. तो ड्राइंग और फ्रिक्शन दोनों से प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस. कब कब? ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड exhalation
प्रोसेसेस। तो इन दोनों प्रोसेसेस के टाइम पे ये दो काम करता है, एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में, और एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेसेस के टाइम पे ड्राइंग और फ्रिक्शन को दूर रखते हैं। अब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, एक्सटर्नली the lung is divided into the right lung is divided into 3 parts। वो तीनों पार्ट हैं सुपीरियर, मिडल एंड inferior lobes। These are the 3 parts in which the right lung is divided by 2 fissures। वो दोनों हैं horizontal fissure and oblique fissure। ठीक है। अब जो लेफ्ट लंग है, सेम वे एक्सटर्नली मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। द लेफ्ट लंग डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। 2 पार्ट्स, superior lobe and inferior lobe by an oblique fissure। This is all about the right lung and that is all about the left lung। अब लंग का मतलब क्या होता है? तो लंग मीन्स लाइट एंड वेट। सो लंग is a word which literally means light and weight। मेरी बदसूरत सी राइटिंग समझ जाइएगा। It means light and weight due to numerous alveoli present in lung। lungs में जैसा कि देख रहे हैं हम, बहुत सारी alveoli present होती हैं। So with the numerous alveoli present in lung, numerous alveoli present in the lung, it becomes a spongy structure। स्पंज देखिए, उसमें कितने सारे होल्स होते हैं। होल्स में क्या भरी होती है? हवा। तो एल्वेलाई में भी तो क्या होती है? हवा ही होती है। सो इट बिकम्स स्पंजी स्ट्रक्चर। अब आपको तो फ्यूचर डॉक्टर बनना है, कभी किसी के लंग का ऑपरेशन करते टाइम दबा के देख के एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना कि ये तो स्पंजी स्ट्रक्चर है, चेक करते हैं कैसा स्पंजी है। अब जो लंग की जो प्लूरल कैविटी होती है, लंग की जो प्लूरल कैविटी होती है, ये पता है कई बार ये इन्फ्लेमेशन दिखाती है। कोई अच्छी बात तो है नहीं किसी चीज़ का सूज जाना या फिर मोटा हो जाना। हम इंसानों का मोटा हो जाना बहुत बुरा लगता है हमें, है ना। तो ये तो हमारा इनर बॉडी पार्ट है, जान से भी प्यारा है। खैर ये जाते ही जान तो चली जाएगी। तो प्लूरल कैविटी जब इन्फ्लेमेशन दिखाती है तो वो कोई अच्छी बात तो होती नहीं, वो एक डिसीज़ होती है और उसका नाम होता है प्लूराइटिस। So it is known as pleuritis। अब ये क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीज़न है ड्यू टू एक्सेस सिक्रेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वही तो प्लूरल फ्लूइड को सिक्रेट करती है, और कई बार गलती से या फिर जानबूझकर प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरल फ्लूइड को सिक्रेट कर देती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बगैर ये समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। तो अंजाम की परवाह नहीं करती वो। तो अंजाम उसका ये होता है कि वो बेचारी मोटी हो जाती है।
लाइक हम लोग होते हैं ना, कई बार बेकार में केक्स बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहते हैं बगैर सोचे क्या होगा, और आखिरी में पता चलता है हम इतने मोटे हो गए, अब हमसे चला नहीं जा रहा। वही इसके साथ होता है। फिर ये जब इतनी मोटी हो जाती है तो इससे के अंदर से हवा पास नहीं हो पाती है, तो उसे बोलते हैं प्लूराइटिस। जो इन्फ्लेमेशन होती है प्लूरल कैविटी में, इसे बोलते हैं प्लूराइटिस, और ये प्लूरल फ्लूइड के एक्सेस में सिक्रेशन के कारण होती है। इसका मतलब अगर हमारी साइंस में समझाऊं तो जो हमारा मोटापा होता है उसे बोलते हैं इधर प्लूराइटिस, हमारे वहाँ ओबेसिटी बोलते हैं, राइट। तो ये इन्फ्लेमेशन हमारा मोटापा, प्लूराइटिस हमारी ओबेसिटी, और इसका कारण हमारे केक्स बर्गर्स पिज़्ज़ा। मैं खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन इधर इसे तो नहीं करना चाहिए ना। वट वी हैव नाउ इज़ द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, जिसमें ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों हैं। ये मत सोचना कि मैं तो आधी साइड बनाया तो एक ही साइड होता है, ये बस इसलिए बनाया क्योंकि ईजी रहेगा, वरना होच पोच हो जाता, लिखने के लिए जगह नहीं बचती, बस इसलिए। तो इधर ये जो हमारा है ये ट्रैकिया है, इधर मैंने कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन अलग अलग दिखाए हैं। द वन हु आर नॉट अवेयर विद व्हाट इज कंडक्टिंग जोन एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी जोन, रेफर टू माई पार्ट 1। सर्च बॉक्स में जाओ, सर्च करो लर्न इट IIT चे विद बबीता ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 1, सबसे आगे आपको मिलेगा। तो इधर हमारे पास है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये कैरेना पॉइंट पे राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है। तो ये जब लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है, तो लाइक समझो कि मैं ट्रैकिया से होती हुई जा रही थी, मैंने देखा एक तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो राइट जो प्राइमरी ब्रोंकाई थी वो देखने का मेरा मन नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ही देखूंगी। चलो अब चलते हैं मेरे साथ लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है उससे मतलब एक ब्रोंकस निकलेगी, तो उसे बोलते हैं लोबर ब्रोंकाई। लोबर ब्रोंकाई होती है ये लेफ्ट लंग में 2 होती है नंबर में, बिकॉज इसमें 2 लोब्स होती हैं। लोबर ब्रोंकाई का मतलब होता है, या फिर इसे सेकेंडरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं। लोबर ब्रोंकाई का मतलब होता है वो हर एक लोब में एक एक होती है, राइट लंग में 3 होती हैं क्योंकि 3 लोब्स होती हैं। अब सेगमेंटल ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है सेगमेंट्स में, एंड दैट इज सेगमेंटल ब्रोंकाई दोनों लंग में 10-10 होती हैं, बराबर होती हैं, दैट डजंट डिपेंड अपॉन लोब्स एट ऑल। अब इधर एक गैप होता है, छोटा सा गैप मतलब बनाते हैं। हाँ, इसका मतलब इधर होता है कि जो और बाकी सेगमेंटेशंस या फिर ब्रांचिंग्स होते हैं उनको डिपिक्ट करता है गैप। अब उसके बाद आती है हमारी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई के बाद लार्जर ब्रोंक्यूल्स आते हैं सबसे पहले, उसके बाद स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, और लास्ट में आती हैं एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल प्लस एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलस फॉर्म्स एल्वियोलर सैक। दिस इज द एल्वियोलर सैक। अब जो इधर होता है हमारा सेगमेंटल ब्रोंकाई तक होता है हमारा कंडक्टिंग जोन, और उसके बाद इधर हमारा लार्जर ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होकर इस गैप के बाद ये लार्जर ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होकर एल्वियोलस तक हमारा होता है रेस्पिरेटरी जोन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। इट्स मतलब ये अपने बॉल्स में आ सकते हैं, नीट में भी इसका मतलब बहुत जगह काम आएगा, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने इधर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में एक एक चीज़ अलग से इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्री। सो टुडेज जर्नी वॉज अप टू टिल हियर। लेट्स एंड द सेशन नाउ, proceed with me to the part 3. Till then, I'll be waiting for you. Bye-bye.